A very good morning, all of you, my dear students. I welcome all of you after your summer vacations in your online classes. Okay, so I hope you all have spent your summer vacations in a proper manner and followed all the guidelines of COVID 19. So, today is Tuesday, children, and you all have your GK class. So, from page number 7 to 13, we have finished. Okay, now we have to start page number 14. Okay, page number 14. So the name of the page is famous authors. ओके फेमस ऑथर्स. फेमस मतलब जो बहुत फेमस होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं, और ऑथर्स में मतलब जिन्होंने बुक्स वगैरह लिखी होती हैं. तो फेमस ऑथर्स, वील स्टडी अबाउट देम इन दिस पेज. Some well-known authors and their work are given below. Now, some authors are given below and their work is also given below. जो उन्होंने किया है, क्या लिखा है, वो भी दिया है. Write their names by taking help from the given clues. These clues are given. We have to take help from them and we have to write their names here in the box. Okay, so let's start from the first. First, he wrote stories like The Little Mermaid, The Ugly Duckling and थम्बलिना. ओके, इन्होंने, ये जिनकी पिक्चर बनी है, इन्होंने स्टोरीज लिखी हैं लिटिल मर्मेड, अगली डकलिंग एंड थम्बलिना. ओके, हिज नेम इज क्रिश्चियन एंडरसन. ओके, हिज नेम इज क्रिश्चियन एंडरसन. ओके, सेकेंड, ही हैज रिटन गलीवर्स ट्रेवल्स. ओके, he has written Gulliver's Travel. इन्होंने एक बुक का नाम लिखा है Gulliver's Travel and his name is Jonathan Swift. Okay, his name is Jonathan Swift. Okay, here in the book you can see the picture, but in the exam you will not get the pictures, you will get these clues. So you have to read these clues and then you have to write the answer. Okay, then third, he was the author of the book The Adventures of Tom Sawyer. ओके, इन्होंने बुक लिखी है द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर. इनका नाम है मार्क ट्वेन. इनका नाम है मार्क ट्वेन. ठीक है, नाउ सी दिस. नंबर 4, शी वॉज द ऑथरेस ऑफ फेमस 5, सेंट क्लेयर्स, स्क्रीन 7 एंड नॉडी. ठीक है, ये ऑथरेस हैं. ऑथरेस इसलिए क्योंकि लेडी हैं तो ऑथरेस बोला जाता है. ओके, शी वॉज द फेमस ऑथरेस ऑफ किसकी, फेमस 5. इनकी बुक का नाम फेमस 5 है. देन सेंट क्लेयर्स, सीक्रेट 7, दूसरी बुक है सेंट क्लेयर्स, सीक्रेट 7 एंड नॉडी. ओके, शी हैज़ रिटन दीज बुक्स. तो हर नेम इज एनिट ब्लाइटन. हर नेम इज एनिट ब्लाइटन. ओके, देन नंबर 5, ही वॉज द ऑथर ऑफ द नॉवल द ट्रेजर आइलैंड. Okay, he has written the novel, not the book, the novel. He has written Treasure Island. Okay, and his name is Robert Louis Stevenson. Robert Louis Stevenson. Then number 6, she was written the Harry Potter series under the pen name of J.K. Rowling. Okay, she has written the Harry Potter series. You must have seen the picture of Harry Potter. हॉलीवुड फिल्म है हैरी पॉटर की, आप लोगों ने शायद देखी हो. तो इन्होंने जितनी भी हैरी पॉटर्स की सीरीज़ आई थी फिल्म्स की, वो सब लिखी हैं. तो हर नेम इज़ जॉन जो मुरे. ओके, जॉन जो मुरे. ओके, सो वी हैव फिनिश्ड दिस पेज. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 15. पेज नंबर 15, The World of Books. The name of the page is The World of Books. We'll study about the books in this page. Now, some books are given special names. They help us a lot. Now, so many types of books are there, children. लेकिन हर बुक का अलग अलग नाम होता है. So what we have to do here, we have to identify the names of the book and write here. Then use the given clues and write the names of the following. We have to read these clues and we have to write the names of the book here. In this clues, the names are given. We have to identify and write the names. So start. I contain telephone numbers. I am a. ठीक है, मेरे अंदर टेलीफोन नंबर्स होते हैं. मैं हूँ, मैं क्या हूँ, टेलीफोन डायरेक्टरी. ओके, टेलीफोन डायरेक्टरी होती है, उसके अंदर सबके टेलीफोन नंबर्स होते हैं. सो आई एम अ टेलीफोन डायरेक्टरी. देन सेकेंड, आई कंटेन मीनिंग ऑफ वर्ड्स. आई एम अ, मेरे अंदर वर्ड्स की मीनिंग लिखी होती है. आई एम अ डिक्शनरी.
We all know that when we have to see the meaning of any word, we are looking in the dictionary. We are also looking, you are also looking. So dictionary में words की meaning होती है, तो it is a dictionary. Then third, I contain information about various subjects I am an. ठीक है, मैं ऐसी बुक हूँ जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, तो उसको कहते हैं इंसाइक्लोपीडिया. ओके, इस बुक को कहते हैं इंसाइक्लोपीडिया. इंसाइक्लोपीडिया इज़ अ बुक वेयर यू विल गेट सो मैनी टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट सो मैनी टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स. ओके, डिफरेंट सब्जेक्ट्स इंफॉर्मेशन यू विल गेट इन दिस इंसाइक्लोपीडिया. ओके, देन नंबर 4, आई शो योर बैंक ट्रांजेक्शन्स आई एम अ. जब भी मुझे बैंक का ट्रांजैक्शन, ये पासबुक होती है ना, बैंक के ट्रांजैक्शन मतलब किसको हमने पैसे भेजे, कहाँ से पैसे आए, वो सारे ट्रांजैक्शन हमको इस पासबुक में दिखते हैं. आप लोगों ने शायद मम्मी पापा के पास देखा होगा, पापा मम्मी जाते होंगे पासबुक लेकर के बैंक में, तो इस पासबुक में सारी डिटेल्स होती हैं कि हमारे अकाउंट में कितने पैसे हैं, कहाँ भेजा, कैसे किया, कब निकाला, सब. सो सारा ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड इसमें होता है, तो आई एम अ पासबुक. ओके, देन नंबर 5, I tell you how to use a certain gadget I am a. ओके, मेरे अंदर लिखा होता है कि किसी भी गैजेट को, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन को यूज़ कैसे करना है. आई एम अ मैनुअल, इसको कहते हैं मैनुअल. ठीक है, जब भी हम कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं, जैसे फ़ोन हमने ख़रीदा, ठीक है, तो उसमें बॉक्स मिलता है ना, बॉक्स के अंदर छोटी सी बुक टाइप की होती है जिसमें सब कुछ लिखा होता है कि फ़ोन यूज़ कैसे करना है, कहाँ पे कौन सा बटन है, सब कुछ है, उसे कहते हैं मैनुअल. कुछ भी हम ले, चाहे वॉशिंग मशीन ले, चाहे मिक्सी लें, कुछ भी लें, सबके साथ मिलता है, तो उस छोटी सी बुक को बोलते हैं मैनुअल. ठीक है, उसे कहते हैं मैनुअल. देन नंबर 6, I am used when you want to withdraw money from the bank. I am a checkbook. मनी जब भी हमें बैंक से निकालनी होती है तो हम इसका यूज़ करते हैं. सी, दीज आर दी चेकबुक ना, चेकबुक होती हैं, चेक्स का यूज़ करके निकालते हैं. आजकल तो वैसे मम्मी पापा एटीएम से निकालते हैं, एटीएम कार्ड होता है, वहाँ से जाके निकाल लेते हैं, बट अगर एटीएम ना हो हमारे पास तो हम लोग चेकबुक का यूज़ करते हैं. ओके, देन आई रिकॉर्ड योर डेली एक्टिविटीज़. आई एम अ. ओके, कई लोगों को डायरी लिखने की आदत होती है, सो हम रोज़ की उसमें एक्टिविटीज़ लिखते हैं कि हमने क्या किया, क्या नहीं किया, तो डेली एक्टिविटीज़ जिस बुक में लिखते हैं उसे कहते हैं डायरी. ओके, देन इन आवर स्कूल ऑल्सो वी हैव डायरी, उसमें रोज़ का होमवर्क लिखा जाता है, मैम लोग आपकी चेक भी करते हैं. सो डेली एक्टिविटीज़ जिसमें लिखा जाता है, दैट इज़ कॉल्ड डायरी. देन नंबर 8, आई कंटेन वेरियस मैप्स. आई एम एन. जिस बुक में बहुत सारे मैप्स होते हैं उसे कहते हैं एटलस. क्या कहते हैं? एटलस. ओके, आपने देखा भी होगा, एटलस में बहुत सारे मैप्स होते हैं, उसे एटलस कहते हैं. नंबर 9, आई कम आउट एवरी वीक, फोर्टनाइट, मंथ, क्वार्टर और अ ईयर. आई एम अ. ठीक है, मैगज़ीन होती है ना, आप लोगों ने देखी होगी, हर वीक भी आती है, फोर्टनाइट मतलब हर दूसरे दिन भी आती है, एक मंथ में एक बार भी आती है, हर साल में एक बार भी आती है, और 3 महीने में भी एक बार आती है. ठीक है, तो उसको कहते हैं मैगज़ीन. ठीक, ये मैगज़ीन है, सी हियर, पेपर के साथ भी कई बार आती है. ओके, देन नंबर 10, आई एम यूज्ड बाय योर टीचर टू मार्क योर प्रेजेंस और एब्सेंस. आई एम एन अटेंडेंस रजिस्टर. मुझे यूज़ किया जाता है टीचर्स के द्वारा अटेंडेंस का लगाने के लिए, बच्चों की अटेंडेंस लगाने के लिए. तो आप लोगों ने स्कूल में कई बार हर जगह देखा होगा अटेंडेंस रजिस्टर. सो this was the explanation of page number 14 and 15, children. I hope you understood. If not understood, please ask me in the Google Classroom, or you can ask me in the comment section of the YouTube also. We'll meet again in the next class. Okay, till then, take care.